Hey dear students, this is Priyanka Arora and students, I welcome you once again to the virtual classroom of mathematics. So students, in my previous video, I have given you the explanation of various topics like factors, multiples, properties of factors, properties of multiples, even and odd numbers, prime and composite numbers, co-prime numbers, twin prime numbers, and I hope you must have seen that last video. There I have also explained you question number 1 to question number 8 of exercise 2.2 of chapter number 2 playing with numbers. And today in this video, I'll start the new topic for you all and that is divisibility topic. Okay, so let us begin this new topic today. So students, this is the divisibility topic and today I'll explain you the divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 and 25. This divisibility topic is in all the question number 9, 10, 11 and 12. In the all four remaining questions of exercise 2.2, divisibility topic is there. And as I told that in my last video, I have explained you till question number 8. So today we'll begin with question number 9. But before explaining this question number 9, firstly, I'll explain you question number 10 because when you'll understand this question number 10, then question number 9 will be very easy for you all. So let us begin with question number 10. So see, what is there in question number 10? It is check if the numbers in the first column are divisible by the numbers given in the first row. Tick right the box if it is divisible and put a cross if it is not. कुछ नंबर्स गिवन है यहाँ पर और हमें बताने हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये 2, 3, 4, 5, 6, 8 और जितने भी नंबर्स यहाँ पर गिवन है इससे डिविजिबल है या नहीं है. अगर डिविजिबल है तो हमें यहाँ पर टिक राइट पुट करना है और अगर डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ पर रॉन्ग प्लेस करेंगे. सो सी उससे पहले आपको वन बाय वन मैं डिविजिबिलिटी भी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 2. सो देखिए क्या होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 2. पहले तो डिविजिबिलिटी रूल्स. द रूल्स ऑफ डिवीजन हेल्प अस टू चेक वेदर अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर ऑन नॉट. जो रूल्स ऑफ डिवीजन होते हैं उसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइजर है गिवन नंबर से या नहीं है. ये हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स से. ओके, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और इसी को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहा जाता है. तो सबसे पहले मैं बिगिन कर रही हूँ बाय द डिविजिबिलिटी ऑफ 2. 2 की डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल होती है स्टूडेंट्स. आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8. इनमें से अगर कोई डिजिट है लास्ट में किसी भी नंबर के तो वो 2 से डिविजिबल है नंबर, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो ये जो डिजिट्स हैं ये आप मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए क्या डिजिट होनी चाहिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8. तो अगर ये डिजिट्स हैं that means the given number is divisible by 2, otherwise it is not divisible by 2. So let us move on to question number 10. See, I said the last digit should be 0, 2, 4, 6 और 8. ये डिजिट्स अगर लास्ट में आ रही है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर देखिए सारे नंबर्स की जो वंस प्लेस है यानी जो लास्ट डिजिट है उसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है. तो अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम राइट करेंगे, अदरवाइज हम रॉन्ग प्लेस करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 1 है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. यहाँ पे 2 है तो यस ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर मैं राइट प्लेस कर रही हूँ. यहाँ पर थर्ड नंबर में लास्ट डिजिट 8 है तो यस ये भी 2 से डिविजिबल होगा, सो आई एम पुटिंग राइट हियर. Then here 9 is there, so no, it will not be divisible by 2. Then 4 is here, last digit, so yes, it is divisible by 2. Then 7 is here, no, it will not be divisible by 2. Then 0 is there, so yes, it is divisible by 2. Then 5 is there, no, again it is not divisible by 2. Then 3 is there, so no, 3 is again not divisible by 2. Then 8 is there, so yes 8 is in this series, so yes this is divisible by 2. Okay, तो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 था वहां पर हमने राइट प्लेस कर दिया और जहां पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है लास्ट में वहां पे सब जगह मैं क्रॉस कर रही हूँ. दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं वो 2 के टेबल से डिविजिबल
नहीं है। सो दैट वाज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी है। आप किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, लाइक देखिए आपको 20 तक तो टेबल आप इजीली रिमेम्बराइज करते हैं 2 की, तो 20 तक अगर नंबर है आप इजीली पता कर लेते हैं कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। बट अगर इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये डिजिट्स याद रखिए, और अगर ये डिजिट्स वंस प्लेस पर आ रही है तो वो डिविजिबल होगा, और अगर ये डिजिट्स किसी नंबर के वंस प्लेस पर नहीं आ रही है तो वो नॉट डिविजिबल होगा। ओके, सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। नाउ द नेक्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। पहले अब मैं आपको जो डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है 5 की डिविजिबिलिटी। तो देखिए, a number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5। कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल कहलाएगा जब उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 5 होगी। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम 5 की डिविजिबिलिटी को करते हैं। क्या बताया मैंने कि वंस प्लेस पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तब वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर वापस देखिए, वंस डिजिट के ऊपर ऑलरेडी अंडरलाइन है, तो अगर वंस डिजिट पर 0 या 5 है तो राइट पुट करेंगे हम, और 0 और 5 नहीं है तो हम रॉन्ग पुट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर में लास्ट प्लेस पर 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन सेकंड देखिए, वंस प्लेस पर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रॉस मार्क, इट इज नॉट डिविजिबल। देन थर्ड नंबर में यूनिट प्लेस पर 8 है, अगेन 0 और 5 नहीं है तो ये भी क्रॉस मार्क होगा। नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस पर 9 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 0 और 5 नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर पर देखिए, यूनिट प्लेस पर 4 है तो अगेन इट विल आल्सो बी नॉट डिविजिबल, सो विल पुट क्रॉस हियर। देन नेक्स्ट नंबर में देखिए, वंस प्लेस के ऊपर 7 है, सो 7 अगेन नॉट 0 एंड 5, सो विल पुट क्रॉस हियर। देन नेक्स्ट नंबर में देखिए, जो वंस प्लेस है उसके ऊपर है नंबर 0, digit 0 है, so yes it will be divisible by the table of 5। then again next number देखिए, इसकी भी जो वंस प्लेस है वो क्या है, 5 है, so यहाँ पर ये भी divisible होगा because वंस प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए। then next number देखिए, next number में वंस प्लेस पर है digit 3, it is not 0 and 5, so we'll put cross here। then again next number में देखिए, वंस प्लेस पर है 8, so again not 0 and 5, so we'll put cross here। So this is the divisibility of 5. When any number is having 0 or 5 on its ones place, then it is divisible by 5, otherwise it is not divisible by 5. So now I hope the divisibility of 2 and 5 must be clear to you all. Now let us move on to the next number, and next I am taking here the divisibility of 10. Okay, पहले मैं आपको जो सिंपलेस्ट डिविजिबिलिटी है वो बता रही हूँ। तो 10 की डिविजिबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल होती है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं होता है। ओके, सो अगेन लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें लास्ट डिजिट देखनी है कि जिसके लास्ट में 0 नंबर आ रहा है, 0 डिजिट आ रही है तो वो डिविजिबल होगा, बाकी सारे नॉट डिविजिबल होंगे। तो ये सारे नंबर्स में आप देखिए सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है कि जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। ओके, ये वाला जो नंबर है 98201900, इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, तो सिर्फ ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। बाकी सारी डिजिट्स आप देखिए, सारे नंबर्स की लास्ट डिजिट देखिए, किसी के भी लास्ट में 0 नहीं है, तो बाकी सारे नॉट डिविजिबल होंगे। सिर्फ ये वाला जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल होगा। तो जहां पे 10 आ रहा है उसके नीचे आप यहाँ इस नंबर के जस्ट सामने आप राइट प्लेस कर देंगे, और बाकी के जो सारे नंबर्स हैं वो नॉट डिविजिबल होंगे तो उन सब में आप क्रॉस मार्क पुट कर देंगे, बिकॉज दीज ऑल आर नॉट डिविजिबल बाय 10, क्योंकि उसकी जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, so now with this I have explained you the divisibility of 2, 5 and 10. Now let us move on to two more divisibilities, which are the divisibility of 3 and 9. अब मैं आपको 3 और 9 की divisibility बताऊंगी। दोनों की divisibility similar होती है, इसलिए दोनों divisibilities मैं एक साथ बता रही हूँ। तो देखिए क्या होती है 3 और 9 की divisibility। A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3।
कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स होंगी उसका जब आप सम करेंगे तो वो अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और यही सेम जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 9 का भी होता है। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of the digits is divisible by 9। अगर sum of digits 9 से divisible है तो वो पर्टिकुलर नंबर 9 से divisible है, अदरवाइज नहीं है। अब प्रैक्टिकली मैं इसको आपको बता रही हूँ क्वेश्चन के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। हम बिगिन करते हैं फर्स्ट नंबर से। जैसे ये नंबर्स हैं, अब सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब हुआ, जितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पर, लाइक 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, इन सारी डिजिट्स को आप करिए आपस में ऐड। ओके, जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है, देखिए इन नंबर में कौन कौन सी डिजिट थी, 5 6 8 9 2 3 4 1। हमने इन सब नंबर्स को नोट डाउन करा, सारी डिजिट्स को नोट डाउन करा और इसको करेंगे ऐड। तो देखिए इसको ऐड करने पर हमारे पास में आ रहा है रिजल्ट 38। ओके, अब इस 38 को हमें चेक करना है कि क्या ये 3 की और 9 की टेबल में आता है। तो 3 की जो टेबल है वो आपको 30 तक तो रिमेम्बराइज होती है, 3 टाइम्स 30। अगर 30 से ग्रेटर नंबर आ जाता है तो उस नंबर को भी आप ब्रेक करके ऐड कर सकते हैं। तो 8 और 3 को आप ऐड करिए। सो 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। ओके, अब देखिए क्या ये नंबर ऐड करने के बाद में जो हमने सारी डिजिट्स को ऐड करा है, क्या ये 3 की टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ पर ऐड करने पर 11 आ रहा है, तो 11 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है। तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस। और यहाँ पर 9 का भी सेम ही है। तो 9 38 हम 9 से तो देख ही सकते हैं, 9 की टेबल में 38 नहीं आता है। तो दैट मीन्स ये 9 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये होती है 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी, कि आपको जितने भी नंबर्स गिवन है उन सबको आपस में ऐड करके देखना होता है कि क्या उसका सम 3 से और 9 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है सो राइट, और अगर डिविजिबल नहीं है सो रॉन्ग। सो let us now move on to the next number. So the next number is, we'll add all the digits, 7 plus 8 plus 4 plus 5 plus 0 plus 8 plus 9 plus 2. So these are all the numbers in second part. Okay, after noting down, just check also that you have noted down all the digits correctly or not. So it was 7 plus 8 plus 4 plus 5 plus 0 plus 8 plus 9 plus 2. Now when you'll add it, no, you'll get 43. Add करने के बाद आपके पास में 43 आएगा। अब 43 3 की टेबल मीन्स 30 से ग्रेटर है, तो आप 4 और 3 को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए 43 ना तो 9 की टेबल में आता है, और 43 को जब हमने ऐड किया तो 7 आया, और 7 3 की टेबल में भी नहीं आता। तो ये नंबर्स हैं, ये क्या होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 9। ओके, नाउ in the same way we'll move on to the next part, and in next part the number is 6 plus 7 plus 9 plus 0 plus 2 plus 3 plus 1 plus 8. So this is the next number. When you'll add all these digits, you will get the result as 36. Okay, अब 36 9 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36। और 3 की टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो 3 की टेबल में देखिए 3 और 6 को ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। सो यस, 3 की टेबल में 9 आता है। दैट मीन्स ये जो नंबर है थर्ड नंबर, ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि जो इसकी सम ऑफ डिजिट्स हमने करी उसका जो रिजल्ट है वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो ये कंप्लीट नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। इट इज 2 plus 1 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 plus 0 plus 9। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट नंबर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए इसको ऐड करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा वो अगेन क्या आएगा, 36 आएगा यहाँ पे भी रिजल्ट। और 36 9 की टेबल में भी आता है, और 3 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 3 के टेबल में आता है। तो ये भी नंबर्स जो है वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। The next number, the digits which are here is 3 plus
8 plus 0 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 4. Okay, just check we have noted down all the digits or not. 3 plus 8 plus 0 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 4. Now let us add all these numbers. So after adding all these digits, you will get the result as 35. Now 35 is not divisible by 9 और 3 और 5 को जब आप ऐड करते हैं तो आता है 8 और 8 भी जो है वो 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है. सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये ना 3 से डिविजिबल है और ना ही ये 9 से डिविजिबल है. तो यहाँ पर दोनों जगह हम पुट कर देंगे क्रॉस. ओके, सिमिलरली let us move on to the next number, and the digits in the next number are 7 plus 8 plus 3 plus 0 plus 2 plus 9 plus 1 plus 7. Now after adding all these digits you will get the result as 37. Okay, and 37 30 से greater है तो इसको भी हम break करके add कर देते हैं. तो 3 plus 7 is equals to 10. Now you know that 37 is not divisible by 9. 37 9 की टेबल में नहीं आता है और 10 3 और 7 को जब हमने break करके add किया तो 10 आया और 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता. That means जो next number है वो 3 और 9 दोनों से ही divisible नहीं है. तो यहाँ पर हम दोनों जगह place कर देंगे cross. Okay, now let us move on to the next number, and the digits in the next number are here. I am mentioning all the digits. 9 plus 8 plus 2 plus 0 plus 1 plus 9 plus 0 plus 0. So these are all the digits in the next number. So यहाँ पर आप ऐड करिए, देखिए 8 plus 2 10, 10 plus 9 19, 19 plus 1 20 and 20 plus 9 is equals to 29. Okay, and 29 is not divisible by 3 and 9. 29 ना तो 3 की टेबल में आता है और ना ही 9 की टेबल में आता है. दैट मीन्स ये जो नेक्स्ट नंबर है ये भी 3 और 9 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है. तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मार्क प्लेस कर देंगे. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, एंड द नेक्स्ट नंबर इज व्हाट इट इज. इट इज 5 plus 4 plus 3 plus 0 plus 1 plus 2 plus 9 plus 5. ओके, सो इसको भी आप ऐड करके देखिए. तो देखिए 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 9 is 19, 19 plus 2 is 21, 21 plus 5 is 26, and 26 plus 3 is again 29. So again the result is 29, and as I told you 29 is not divisible by 3 and 9 both. So here in front of next number also under 3 and 9 column I'll put cross mark because this number is not divisible by 3 and 9 both. Now let us move on to the next number, and the digits in the next number are what it is. Let us mention it is 1 plus 2 plus 0 plus 9 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3. Okay, these are all the digits in the next number. So 1 plus 2 plus 0 plus 9 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3. Add करिए. 2 plus 1 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 9 is 19, and 19 plus 2 is equals to 21. तो यहाँ पर आ गया 21. अब जो 21 है स्टूडेंट्स वो 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है. 21 3 के टेबल में आता है बट 9 के टेबल में नहीं आता है. तो यहाँ पर 3 के नीचे जो है वहां पर तो राइट आप प्लेस करेंगे और 9 वाले कॉलम में आप प्लेस करेंगे रॉन्ग, क्योंकि 21 इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 9. ओके, सम जो है 21 आया था. अब लास्ट नंबर है यहाँ पे, देखिए लास्ट नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनको भी हम ऐड कर लेते हैं. So 8 plus 4 plus 3 plus 1 plus 2 plus 0 plus 9 plus 8. So these are the digits in the last number. So let us add it. So after adding all these digits, you will get the result as 35. और 35 30 से ग्रेटर होता है तो इसको 3 और 5 को भी आप ब्रेक करके ऐड कर सकते हो. So 3 plus 5 is equals to 8. अब देखिए 35
ना तो 9 से डिविजिबल है और ना ही 3 + 5 यानी कि 8 जो आता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये ना ही 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम 3 के अंडर भी क्रॉस लगा देंगे और 9 के अंडर भी हम इसके सामने, इस नंबर के सामने क्रॉस मेंशन कर देंगे। सो दैट वाज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। आपको बस कुछ नहीं करना, सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको उनकी सारी डिजिट्स को आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में आपको देखना है कि अगर उसका सम 3 और 9 से डिविजिबल है तो आप राइट पुट करेंगे, और 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है तो आप वहां पे सिंपली क्रॉस पुट कर देंगे। ओके, सो दैट वाज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9. Now with this I have explained you the divisibility of 2, 3, 5, 9 and 10. I hope all these divisibility must be clear to you. Now let us move on to the divisibility of 6. अब हम 6 की divisibility की तरफ चलते हैं। बहुत ही simple है 6 की divisibility। देखिए क्या होती है 6 की divisibility। A number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3 both. अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल हो जाए, नहीं, दोनों से जब डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देखिए इसको क्वेश्चन के साथ में ही हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं था, 3 से भी डिविजिबल नहीं था, दोनों में ही क्रॉस लगा हुआ है। तो अगर इन दोनों में क्रॉस है तो दैट मीन्स 6 में भी क्रॉस आएगा। देन सेकंड नंबर देखिए, 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, एक से डिविजिबल है दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से तभी डिविजिबल होगा जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 दोनों में राइट है तो 6 में भी राइट आएगा, लेकिन 2 और 3 में से किसी एक में राइट है, एक में रॉन्ग है, तो 6 में भी रॉन्ग ही आएगा। इसी के साथ में थर्ड नंबर देखिए आप, 2 से डिविजिबल है थर्ड नंबर, 3 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो यस ये फिर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 पर भी हम राइट प्लेस करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर देखिए आप, ये 2 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देन दिस नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देन दिस नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देन 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देन लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सो द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 इज वेरी सिंपल। कोई भी अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ओके, अब हम 4 और 8 की डिविजिबिलिटी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 4 की डिविजिबिलिटी देखिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डबल जीरो और डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और डिविजिबल है या नहीं है आप कैसे चेक करेंगे, अगर आप डायरेक्ट टेबल नहीं जानते हैं तो आप लास्ट की 2 डिजिट और 3 डिजिट को 4 से और 8 से डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो लेट अस डिस्कस दिस विद द नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखिए, यहाँ पे 41 है, और 4 की टेबल में पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे हम, तो अगर लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो हो या 4 से डिविजिबल हो तो राइट मार्क करेंगे हम, और अगर लास्ट की दो डिजिट 0 नहीं है और 4 से डिविजिबल भी नहीं है तो हम वहां पे क्रॉस मार्क करेंगे। तो अभी यहाँ पे 41 है। ओके, अब 41 जो है वो 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं होता, 4 की टेबल में 40 आता है, 4 10 40 और 4 11 44, बट 41 नहीं आता।
तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 4 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के अंदर जो लास्ट की 2 डिजिट है वो है 92। अब 92 को हमें चेक करना है कि 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो देखिए हम इसको करके देखते हैं। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 9 में से मैंने 8 यूज में लिया, 1 कैरी हो गया, तो ये 2 बन जाएगा यहाँ पे 12। अब 4 की टेबल में 12 आता है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो देखिए ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया 4 की टेबल से, यानी कि जो 92 है वो 4 की टेबल में 23 टाइम्स आता है। तो दैट मीन्स यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर 40 तक नंबर्स आ रहे हैं तब तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और 40 से ग्रेटर नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको उसको 4 से डिवाइड करके देखना होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट की 2 डिजिट है 1 8 18, और आपको पता है जो 18 है वो 4 की टेबल में नहीं आता। 4 4 16 एंड 4 5 20, तो दैट मीन्स 18 नहीं आता ना, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्रॉस मार्क। यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट है 09, 09 दैट मीन्स 9, और 9 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्रॉस, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट की 2 डिजिट है 2 4 24, और 24 4 की टेबल में आता है, 4 6 24, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 4 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर हम राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए 1 7 17, ओके, 17 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में 16 आता है बट 17 नहीं आता, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया 4 की डिविजिबिलिटी में कि या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए या लास्ट की 2 डिजिट 0 0 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 0 आ रहा है, तो सिंपली बस आप यहाँ पर राइट मार्क प्लेस कर देंगे, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। नाउ नेक्स्ट जो नंबर है वो है 95। अब आपको चेक करना है क्या 95 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो आप देखिए सेपरेटली लिख लीजिए 95। अब देखिए 95 डिविजिबल है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 4 की टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से छोटा आता है 8। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो कैरी कितना गया यहाँ पर? 1, 8 यूज में लिया तो 1 रिमेनिंग हो गया, तो ये 5 बन जाएगा 15। अब क्या 4 की टेबल में 15 आता है? तो नहीं, 4 की टेबल में 15 नहीं आता, तो दैट मीन्स 95 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क कर देंगे। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है 1 3 13। अब 13 भी जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, 4 में 12 आता है बट 13 नहीं आता, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट है 98, तो 98 को हम चेक करते हैं क्या 98 4 की टेबल में आता है। तो देखिए 4 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 2 टाइम्स। अब 9 में से हमने 8 यूज में लिया, कितना बचा? 1, तो 1 जो है वो 8 के आगे लग जाएगा, तो 8 बन जाएगा 18। अब बताइए क्या 4 की टेबल में 18 आता है? नहीं, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 4 की टेबल में 16 आता है, तो दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द डिविजिबिलिटी ऑफ, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ओके, क्या बताई मैंने डिविजिबिलिटी कि आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या लास्ट की 2 डिजिट डबल 0 है तो वो 4 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज वो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू द divisibility of 4. Now let us move on to the divisibility of 8. 8 की divisibility students अभी मैंने आपको समझाई थी कि 4 में जैसे हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं वैसे 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आप वेरी फर्स्ट नंबर में लास्ट की जो 3 डिजिट है वो क्या है? 341, ये है लास्ट की 3 डिजिट, तो इसको हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं 34, 8 की टेबल में 34 से छोटा आता है, 8 4 32। ओके, तो 34 में से हमने 32 यूज में लिया, 2 कैरी चले गए, तो ये जो 1 है ये बन जाएगा 21, तो 21 8 की टेबल में नहीं आता। अब क्योंकि 21 8 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर के अंदर जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो क्या है? 892, दिस इज द नंबर। अब 892 देखिए, 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, अगेन 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 1 टाइम,
1 कैरी गया यहाँ पे, तो ये जो 2 है बन जाएगा 12। अब 8 के टेबल में जो 12 है वो नहीं आता है, तो 12 अगर नहीं आता 8 के टेबल में, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है क्रॉस मार्क। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में, लास्ट की 3 डिजिट्स गिवन है यहाँ पे 318। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 318 को, क्या 318 जो है वो 8 की टेबल में आता है? तो फर्स्ट टू नंबर्स हैं 31, 8 की टेबल में 31 से छोटा आता है 8 3 जा 24। ओके, 31 में से जब आप 24 को माइनस करेंगे आपके पास में नंबर आ जाएगा 7, तो वो 7 8 के पास में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 78। अब 8 की टेबल में 78 नहीं आता, दैट मीन्स 318 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर आ गया क्रॉस। आप अगर ये डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रफ में डिवीजन करके देख लीजिएगा, फॉर्मेट के साथ में आपको समझ आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट डिवीजन ही समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 809 है लास्ट की 3 डिजिट नेक्स्ट नंबर में 809। तो देखिए 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 8 की टेबल में 0 आता है 0 टाइम्स। अब 9 को देखेंगे तो 8 की टेबल में 9 तो नहीं आता, 8 आता है, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्रॉस पुट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 824, लास्ट की 3 डिजिट्स देखिए 824। सो 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, अब 8 की टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है, तो हम दो नंबर्स लेंगे और कभी भी हम बीच में से दो नंबर लेते हैं तो 0 पुट करते हैं, और 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो यस दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 8। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे राइट मार्क। ओके, now let us move on to the next number, and in next number the last 3 digits are 9 1 and 7। see here is 9 1 and 7, तो 9 1 7 को हम चेक करते हैं। 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 1 टाइम, सो हमने पुट किया 1, 1 कैरी गया 11 हो गया। अब 11 से छोटा 8 की टेबल में 8 ही आता है 1 टाइम्स। अब 11 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3, तो ये नंबर हो जाएगा 37। अब 8 की टेबल में 37 नहीं आता, तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे क्रॉस मार्क। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट है 900, तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया 900। अब देखिए 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 1 टाइम, 1 कैरी हुआ, ये नंबर हो गया 10। अब 10 नहीं आता है 8 की टेबल में, 10 से छोटा 8 ही आता है 1 टाइम, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1, 2 बचे, तो 2 रिमेनिंग बचे, तो लास्ट का जो 0 है वो हो जाएगा 20। अब 8 की टेबल में 20 नहीं आता, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया क्रॉस मार्क। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट्स है आपके पास में वो है 295, तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया 295। अब चेक करते हैं इसको, तो फर्स्ट 2 डिजिट देखिए 29, 8 की टेबल में 29 से छोटा आता है 24, 8 3 जा 24, 29 में से आप जब 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5, तो ये जो नंबर है लास्ट वाला ये बन जाएगा 55। अब 8 की टेबल में 55 नहीं आता है, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो है 213। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर 2 है, 2 तो आता नहीं 8 की टेबल में, तो हम दो नंबर्स लेंगे 21 लेंगे। 8 की टेबल में 21 से छोटा आता है 16, 8 2 जा 16, 21 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 5, और ये जो नंबर है 3 ये बन जाएगा 53। सो 8 की टेबल में 53 नहीं आता है, तो दैट मीन्स ये जो नेक्स्ट नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ द लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स आर 098। अब है हमारे पास में 098, सो बिगनिंग में 0 है तो हम बिगनिंग का 0 नहीं लेते हैं, तो ये बेसिकली नंबर 98 ही कहलाएगा। अब 98 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए, सो 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 1 टाइम, 9 में से हमने 8 यूज में लिया तो 1 बच गया, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 8 के पास में, तो 8 बन जाएगा 18। अब 9 8 की टेबल में 18 नहीं आता है, दैट मीन्स ये जो लास्ट नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस कंप्लीट सीरीज के अंदर आपने देखा कि सिर्फ एक ही नंबर था जो 8 से डिविजिबल हुआ, बाकी सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल नहीं थे। ये देखिए पूरी सीरीज में सिर्फ ये वाला जो नंबर है 38019824 सिर्फ ये 8 से डिविजिबल था, बाकी सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल
नहीं थे क्योंकि उनकी जो लास्ट 3 डिजिट थी वो 8 से डिविजिबल नहीं थी। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट मेथड बताया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिवीजन फॉर्मेट बना के इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, और अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, so with this I have explained you the divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Okay, now the divisibility of 11 I'll explain you in the last. Firstly, I'm explaining you the divisibility of 12. So let's pay attention on the divisibility of 12. What is the divisibility of 12? Just see here. See, a number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 और 4. जैसे मैंने आपको 6 की divisibility बताई थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब वो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 12 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है ये भी। अब हमें देखना है 3 और 4। आप देखिए ये दोनों कॉलम्स आप देखेंगे 3 और 4। तो कोई नंबर अगर 3 में भी राइट है और 4 में भी राइट है तो 12 में भी राइट आएगा, और अगर 3 और 4 दोनों में क्रॉस है तो 12 में भी क्रॉस आएगा। तो वेरी फर्स्ट देखिए 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है बट 4 से डिविजिबल है, तो नहीं, दोनों से डिविजिबल होगा तभी 12 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे क्रॉस मार्क। नेक्स्ट देखिए 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है बट 4 से डिविजिबल है, बट दोनों से डिविजिबल नहीं है तो 12 से डिविजिबल भी नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली जब दोनों से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है बट 4 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है तो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और उसके बाद में लास्ट 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सी, सो द डिविजिबिलिटी ऑफ 12 वाज वेरी मच सिंपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 15। अब हम 15 की डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। 15 की डिविजिबिलिटी भी बहुत सिंपल होती है स्टूडेंट्स के, अगर कोई नंबर 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है तो वो 15 की टेबल में भी आएगा, और अगर नंबर 3 में और 5 में दोनों में नहीं आ रहा तो वो 15 में भी नहीं आएगा। देखिए number is divisible by 15 if the number is divisible by both 3 and 5। अगर नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट 3 में भी क्रॉस है, 5 में भी क्रॉस है, तो 15 में भी क्रॉस आएगा। नेक्स्ट 3 में राइट है बट 5 में क्रॉस है, तो एक में राइट एक में रॉन्ग, तो 15 में भी रॉन्ग ही आएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 में राइट है और 5 में क्रॉस है, तो 15 में भी क्रॉस मार्क आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 में क्रॉस है, 5 में भी क्रॉस है, तो ऑब्वियसली 15 में भी क्रॉस मार्क आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो 15 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है बट 5 से डिविजिबल है, तो 15 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है नेक्स्ट नंबर बट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 से डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 15 से बेसिकली तभी डिविजिबल होगा जब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये डिविजिबल। ओके, सो 6 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी होगा। देन 12 की क्या थी कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। और 15 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो फिर वो 15 से भी डिविजिबल होगा। नाउ I hope students now all these divisibility till 15 must be clear to you. So now let us move on to the divisibility of 25. 25 की divisibility देखिए क्या है 25 की divisibility? If the last two digits are zeros, अगर last की दो digit zero आ जाती है, 0 0 हो जाता है,
या फिर लास्ट के जो नंबर है वो 25 आ जाते हैं, तो वो जो होगा नंबर, गिवन नंबर, वो 25 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या बताई मैंने कि लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 होनी चाहिए या लास्ट की 2 डिजिट 25 की टेबल में आनी चाहिए, 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी भी यही थी कि लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए और लास्ट की जो 2 डिजिट है या वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, तो 4 और 25 की डिविजिबिलिटी सेम है। जो टेबल हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर 18 की डिविजिबिलिटी नहीं पूछी है, बट अगर 18 की डिविजिबिलिटी आपसे पूछी जाती है तो 18 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई नंबर 9 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में भी आ रहा है तो फिर वो 18 की टेबल में भी आता है। So this is the divisibility of 18. So now let us move on to the question number 10 and check the divisibility of 25. तो देखिए यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट 41 है, 25 की टेबल में 41 नहीं आता है, दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो 25 से डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है 92, 92 25 की टेबल में नहीं आता तो ये भी नॉट डिविजिबल। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है 18, 18 25 के टेबल में नहीं आता तो नॉट डिविजिबल। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट की 2 डिजिट है 09, तो 09 भी 25 की टेबल में नहीं आता तो नॉट डिविजिबल। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट की 2 डिजिट 24 है, 24 डजंट कम इन द टेबल ऑफ 25, सो क्रॉस। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट की 2 डिजिट है 17, 17 भी जो है वो 25 के टेबल में नहीं आता, सो इट विल आल्सो बी क्रॉस। देन नेक्स्ट नंबर के अंदर लास्ट की 2 डिजिट 00 है। सो सी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 00 आ जाती है, ओके, तो वो 25 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट की 2 डिजिट 00 है, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर के अंदर देखिए लास्ट की 2 डिजिट 95 है, तो 25 की टेबल में 95 नहीं आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्रॉस पुट करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर में लास्ट की 2 डिजिट 13 है, सो 13 भी 25 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस पुट करेंगे। और नेक्स्ट नंबर में देखिए लास्ट की 2 डिजिट 98 है, 98 भी 25 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर भी हम पुट करेंगे क्रॉस मार्क। ओके, so that was the divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15 and 25, and I hope all these divisibilities must be clear to you all now. Now let us move on to the divisibility of 11. अब हम करेंगे 11 की divisibility and please be careful while we are doing the divisibility of 11. बहुत ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट्स 11 की divisibility। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में बेसिकली रूल क्या होता है यहाँ पर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एवरी डिजिट इन द ऑड प्लेस एंड एवरी डिजिट इन द इवन प्लेस ऑफ दैट नंबर इज 0 और द मल्टीपल ऑफ 11। हमें क्या करना होगा कि जो भी नंबर गिवन होगा उसकी इवन प्लेस और ऑड प्लेस को हम लेंगे, उनका सम करेंगे और सम करने के बाद में डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने पर अगर 0 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है, यानी 11, 22, 33, 44 कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यस, to explain you the divisibility of 11 I have cleared everything so that you can understand it easily। देखिए क्या बताया मैंने आपको कि 11 की डिविजिबिलिटी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर्स गिवन है आप इसको इजीएस्ट वे में करिए। जैसे कि आप क्या करिए, लास्ट से आप नंबर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है फर्स्ट नंबर मैं बता रही हूँ, हम लास्ट नंबर लेंगे 1, उसके बाद में आप 4 को छोड़ दीजिए। 4 के पहले कौन सा नंबर है, 4 के पहले है 3, तो आप 1 के बाद में लीजिए 3। देन 3 के बाद में आप 2 को छोड़ दीजिए और 2 के पहले जो नंबर है वो लीजिए 9। 9 के बाद में आप 8 को लीव कीजिए और 8 के पहले जो नंबर है 6 उसको ले लीजिए। तो ये हमने ले लिए सारे नंबर्स, तो इसका सम क्या आया 19। अब हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर जिन नंबर्स को हमने लीव किया था अब हम वो नंबर लेंगे। तो ऑल्टरनेट नंबर लेने, एक छोड़ के एक नंबर लेना है आपको। अब आप स्टार्ट करोगे 4 से, 4 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आप लोगे वो 3 छोड़ दोगे, अब आप लोगे 2। ओके, 2 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है 9 को आप लीव कीजिए, 9 के बाद में आप लेंगे 8, 8 के बाद में 6 को आप लीव कर लीजिए और आप ले लेंगे 5। तो ये आपने ले लिए नंबर्स 4, 2, 8, 5। ठीक है,
अब दोनों का सम आपके पास में आ गया 19 और 19। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास सम आया उसको आप आपस में माइनस करेंगे। तो जब आप 19 और 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0। ये प्रोसेस करने के बाद में जब हमारे पास में रिजल्ट अगर 0 या 11 की टेबल में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। तो अभी देखिए, जब हमने ये कंप्लीट प्रोसेस करा तो उसके बाद में जो हमारे पास में रिजल्ट है वो 0 आ गया, तो दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। सो अभी फर्स्टली आपने समझा है तो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स वन बाय वन, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑल्टरनेट नंबर लेंगे। लाइक आप बैक साइड से स्टार्ट करिए, 2 लीजिए, 2 के बाद में आप 9 नहीं लेंगे, आप लेंगे 8। ओके, 8 के बाद में आप 0 को स्किप कीजिए, आप लेंगे 5। 5 के बाद में आप 4 को स्किप कीजिए, आप लेंगे 8। ओके, तो ये नंबर्स हमने ले लिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और आप सेट तैयार करेंगे। इसके अंदर पहले हमने 2 से स्टार्ट किया था, अब हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 9 के बाद में आप 8 नहीं लेंगे, आपको क्या लेना है 0। 0 के बाद में आपको स्किप करना है 5। 5 नहीं लेंगे, आप लेंगे 4। 4 के बाद में आप 8 नहीं लेंगे, आप लेंगे 7। तो इस तरीके से आपने ये नंबर्स ले लिए। दो अलग सीरीज हमारे पास में सेट हो गई और उसको हमने ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 3 आया और 3 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट नंबर बता रही हूँ। तो नेक्स्ट नंबर में भी हम एक एक नंबर स्किप करके पहले हम अपनी सीरीज को सेट करेंगे। तो देखिए लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम 8 लेंगे, 8 के बाद में हम 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 3 लेंगे। 3 के बाद में हम 2 को स्किप करेंगे, हम 0 लेंगे। ओके, 0 के बाद में हम 9 को स्किप करेंगे और 7 लेंगे। तो ये नंबर्स हमने लिए और ऐड करने पर हमारे पास में आया 18। अब देखिए 8 से हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के बाद में हम 3 को लीव कर देंगे, हम ले लेंगे 2। 2 के बाद में हम 0 को स्किप करेंगे, हम ले लेंगे 9। 9 के बाद में हम 7 को स्किप करेंगे और ले लेंगे हम 6 को। तो यहाँ पर हमने ले लिया 6 को। अब देखिए हमारे पास में दोनों का रिजल्ट 18 आया। अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 18 माइनस 18, जैसा कि मैंने बताया सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर 0 आए या 11 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर आए तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी 0 आ रहा है तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली बस आपको क्या करना है, एक एक नंबर स्किप करके और फिर एडिशन करना है। तो देखिए इसमें हम 9 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो 9 के बाद में देखिए क्या नंबर है 0। 0 को हम स्किप कर देंगे, हमें लेना है 8। तो हमने लिया 8। 8 के बाद में हम 7 को स्किप करेंगे, हम लेंगे 5। 5 के बाद हम 4 को स्किप करेंगे और लेंगे हम 1। तो ये नंबर्स हमने लिए, ऐड करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 23। इसी तरीके से पहले हमने 9 से स्टार्ट किया था, अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद में हम 8 को स्किप करेंगे, हम लेंगे 7 को। ओके, 7 के बाद में हम 5 को स्किप करेंगे, हम लेंगे 4 को। 4 के बाद में हम 1 को स्किप करेंगे, हम ले लेंगे 2 को। तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर ऐड करने के बाद में 13। अब सिंपली आप क्या करिए, 23 में से 13 को माइनस करिए। तो जब आप 23 में से 13 को माइनस करेंगे आपके पास में आएगा 10। अब 10 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द रूल of divisibility of 11. Okay, now let us move on to the next number. next number के अंदर देखिए हमारे पास में क्या है, लास्ट डिजिट है 4। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, पहले हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद में हम स्किप करेंगे 2 को, हम लेंगे 8 को। देन 8 के बाद में हम स्किप करेंगे 9 को, हम लेंगे 1 को। 1 के बाद में हम स्किप करेंगे 0 को और हम ले लेंगे 8 को। तो ये नंबर्स हमने लिए, ऐड किया, हमारे पास में आया 21। अब हमने 4 से स्टार्ट किया था, तो अब हम नेक्स्ट सीरीज में 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद में आप स्किप करिए 8 को, आप ले लीजिए नेक्स्ट नंबर 9। 9 के बाद में आप स्किप करिए 1 को और 1 के बाद में आपको लेना है 0। 0 के बाद में आप स्किप करेंगे 8 को और आपको ले लेना है 3 को। ओके, ऐड करिए, आपके पास में आ जाएगा 14। अब सिंपली 21 में से आप 14 को माइनस करिए तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 7। 7 जो है वो 11 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे क्रॉस मार्क। ओके, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं होता।
Now let us move on to the next number. This is the next number. यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से, तो लास्ट डिजिट देखिए 7 है। 7 के बाद में आप स्किप करेंगे 1 को, आप लेंगे नेक्स्ट 9 को। 9 के बाद में 2 को स्किप करिए, आप लेंगे 0 को। 0 के बाद में आप 3 को स्किप कीजिए और आप ले लेंगे 8 को। ऐड करिए 24 आ जाएगा। अब 7 से स्टार्ट किया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के बाद में हम स्किप करेंगे 9 को, हम लेंगे 2 को। 2 के बाद में हम स्किप करेंगे 0 को और नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3 को। 3 के बाद में हम स्किप करेंगे 8 को और नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 7। इसको ऐड करने पर आपके पास में आ जाएगा 13। फाइनली आप 24 में से 13 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद में आपके पास में आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 11। तो अगर 11 आ रहा है, दैट मीन्स 11 तो 11 की टेबल से डिविजिबल है, 11 की टेबल में 11 आता है, तो ये जो नंबर है वो 11 से divisible होगा. Okay, now I hope this divisibility is clear to you. Let us do 4 more parts so you'll understand it. Last देखिए यहाँ पर next number की last digit है 0. 0 के बाद में इस 0 को हम skip करेंगे, हम लेंगे 9 को। 9 के बाद में हम 1 को skip करेंगे, ले लेंगे 0 को। 0 के बाद में हम 2 को skip करेंगे और ले लेंगे 8 को, तो आ जाएगा हमारे पास में 17। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमने इसमें डबल 0 है ना, तो अब हम इस 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद में हम 9 को स्किप करेंगे और ले लेंगे 1 को। 1 के बाद में हम 0 को स्किप करेंगे एंड ले लेंगे 2 को। 2 के बाद में हम 8 को स्किप करेंगे और ले लेंगे 9 को। ओके, तो हमारे पास में आ गया एक का सम 17 और दूसरे का 12। तो 17 में से 12 को माइनस करिए, फाइनली 5 आया। 5 जो है वो 11 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मार्क, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11. Okay, now let us move on to the next part, which is this 5 4 3 0 1 2 9 5. तो इसमें भी हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे 5। 5 के बाद में आप 9 को स्किप करिए, आप लेंगे 2 को। 2 के बाद में आप 1 को स्किप करिए, लेंगे 0 को। 0 के बाद में आप 3 को स्किप करिए, लेंगे आप 4 को। तो ये डिजिट्स हमने ले ली। अब देखिए इसके साथ में जो दूसरी सीरीज हम बनाएंगे वो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 9 के बाद में हम 2 को स्किप करेंगे, हम ले लेंगे 1 को। 1 के बाद में हम 0 को स्किप करेंगे, हम ले लेंगे नेक्स्ट 3 को। 3 के बाद में हम 4 को स्किप करेंगे और ले लेंगे हम 5 को। अब देखिए 18 ग्रेटर है, 11 स्मॉलर है, तो हम 18 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास में आया 7। 7 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। ओके, now let us move on to the last second part of this number. So it is starting from 3. So 3 के बाद में आप 1 को skip करेंगे, आप ले लेंगे 2 को। 2 के बाद में 3 को skip करेंगे, 9 को लेंगे। 9 के बाद में 0 को skip कर देंगे और 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेके ऐड करा, 16 आया। इसी तरीके से जो दूसरी सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के बाद में हम skip करेंगे 2 को और नेक्स्ट नंबर ले लेंगे हम 3। 3 के बाद में हम स्किप करेंगे 9 को और नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 0। 0 के बाद में हम 2 को स्किप करेंगे और नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 1। तो ये आ गया हमारे पास में एक का सम 16 और दूसरे का सम 5। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 11। सो यस, 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 की टेबल में 11 आता है, तो ये जो लास्ट सेकेंड नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। सो नाउ we are on the last part of this question of the divisibility of 11. So let's do it. हम इसमें भी लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे 8। 8 के बाद में हम 9 को स्किप करेंगे, 0 ले लेंगे। 0 के बाद में हम 2 को स्किप करेंगे, 1 ले लेंगे। 1 के बाद में हम 3 को स्किप करेंगे और 4 ले लेंगे। तो ये नंबर्स ले लिए हमने, इसका सम आया 8। अब नेक्स्ट सीरीज आप सेट करिए, 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 के बाद में आप 0 को स्किप करेंगे, 2 ले लेंगे। 2 के बाद में आप 1 को स्किप करेंगे, 3 ले लेंगे और 3 के बाद में आप 4 को स्किप करेंगे और 8 ले लेंगे। तो आपके पास में आ गया 22 सम करने के बाद में। अब 22 और 13 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपके पास में आंसर आएगा 9। अब क्योंकि 11 की टेबल में 9 नहीं आता, दैट मीन्स जो लास्ट नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। Okay students, so with this I have explained you the divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 also I have explained you and 25. So these are all the divisibility. Please understand this divisibility. एक बार जब आपको divisibility आ जाती है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सिंपल हो जाती हैं। इतने बड़े नंबर्स जो होते हैं वो हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते, एक एक को डिवाइड करके देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो दीज आर सम
small tricks to find out that particular number is divisible by any number or not. Okay, so that was question number 10 and as I told you कि पहले question 10 explain करेंगे, उसके बाद में आपको question number 9 explain करूंगी. So now I am explaining you question number 9. Please pay attention on it. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू एंड फॉल्स है. अब आप क्योंकि डिविजिबिलिटी समझ चुके हो तो आप ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है क्या ये 2, 3 और 4 तीनों से डिविजिबल है. तो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी स्टूडेंट्स के लास्ट डिजिट आपको देखनी होती है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. तो यहाँ पे 4 है तो यस 2 से तो डिविजिबल है. 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि सारे जो नंबर्स होते हैं उनको हमें प्लस करके देखना होता है. तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 आप जब करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 21 और 21 जो होता है वो 3 की टेबल से डिविजिबल होता है. 3 की टेबल में 21 आता है. और 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी होती है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आ रही है तो कंप्लीट नंबर 4 की टेबल में आता है. तो 64 जो है वो 4 की टेबल में आता है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वो होगा ट्रू. ओके, क्योंकि ये जो नंबर है 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है. अब नेक्स्ट नंबर देखिए 3, 2, 5, 6, 1, 0. हमें बताना है क्या ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है. 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा. तो यस यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है. और 10 यस ये 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में आपके पास में अगर 0 आ रहा है तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होता है. तो यहाँ पे भी आप देखिए कि लास्ट की डिजिट 0 है तो ये नंबर्स जो होगा वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए ये नंबर हमें बताना है क्या ये 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है. 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. तो 48 तो 4 से डिविजिबल है. 48 4 की टेबल में 12 टाइम्स आता है. और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या है 648. इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से डिवाइड करने के बाद में 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ये नंबर भी 8 की टेबल से. तो दैट मीन्स ये जो नंबर ये जो आंसर है ये भी क्या होगा ट्रू होगा. ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए. नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो गिवन नंबर है क्या ये 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है. तो 5 की डिविजिबिलिटी तो सिंपल है, यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए. तो अभी देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है तो यस ये 5 से तो डिविजिबल है. 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, आप सीरीज सेट करिए. लास्ट से आप देखेंगे 5, 5 के बाद में इस 5 को आप स्किप करेंगे आप लिखेंगे 4, 4 के बाद में 3 को स्किप करेंगे आप लिखेंगे 1. इनको ऐड करिए तो 5 + 4 9 + 1 10. ओके, नेक्स्ट सीरीज हम बनाते हैं वापस. अब हम इस वाले 5 से स्टार्ट करेंगे. 5 के बाद में हम इस 4 को स्किप कर देंगे हम ले लेंगे 3, 3 के बाद में हम इस 1 को स्किप कर देंगे हम ले लेंगे 2. अब देखिए 5 + 3 is 8 and 8 + 2 is equals to 10. दोनों का सम 10 आया है. 10 में से अब आप 10 को माइनस करेंगे तो 10 - 10 is equal to 0. और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर माइनस करने के बाद में 0 आ जाता है तो वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज राइट ट्रू. ओके, नेक्स्ट देखिए अब हमें बताना है क्या ये नंबर 3 की टेबल से डिविजिबल है. और 3 की डिविजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें जो डिजिट्स होती हैं वो सब आप ऐड करेंगे. तो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो है 9 + 7 + 6 + 5 + 7 + 5. इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 39. अब 39 30 से ग्रेटर होता है तो इसको भी हमने ब्रेक कर दिया. 3 + 9 is equals to 12. सो यस 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है. तो 3 से तो ये डिविजिबल है. अब 15 से देखना है 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. अगर कोई नंबर 3 में भी आ रहा है 5 में भी आ रहा है तो वो 15 में भी आएगा. तो ये नंबर 3 में तो आ रहा है, 5 में चेक करिए. यस ये 5 में भी आ रहा है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है. ओके, तो अगर ये 3 में आ रहा है 5 में आ रहा है तो ये 15 में भी आएगा. तो इसका आंसर भी क्या होगा ट्रू होगा इसका भी आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ. पार्ट एफ के अंदर हमें बताना है क्या ये 5 और 25 दोनों से डिविजिबल है. 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए. तो यस लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 है तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है. अब 25 में मैंने आपको क्या बताया था कि या तो लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए या लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होनी चाहिए. यहाँ पे 35 है.
35 जो है वो 25 के टेबल में नहीं आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताना है क्या ये जो नंबर है 2, 3 और 5 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में तो आता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है और यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। 5 के टेबल में भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है। ओके, 3 से हमें चेक करना है तो 3 में हमें सारी डिजिट्स को ऐड करना होगा, तो 9 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 ऐड करने के बाद में देखिए हमारे पास में जो सम आया वो क्या आया, 30 आया, और जो 30 है वो 3 के टेबल में आता है। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। तो यस, दिस इज ट्रू। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एच। पार्ट एच देखिए, ये जो नंबर है हमें बताना है क्या ये 3 और 9 दोनों में आता है। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल होता है, सारी डिजिट्स को ऐड करिए, तो 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 42। ओके, 42 को भी हमने ब्रेक किया तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। अब 6 जो है वो 3 के टेबल में तो आता है, बट 42 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे क्या बोला है, दोनों के टेबल में आता है क्या, तो 3 में तो आता है बट 9 में नहीं आता। तो इस वजह से ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, इट इज फॉल्स बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। नाउ नेक्स्ट नंबर हमें बताना है क्या ये 15 और 25 दोनों से डिविजिबल है। तो 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट 90 है, तो 90 जो है वो 25 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है। 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर 3 और 5 दोनों में आना चाहिए, तो ये नंबर 5 में तो आ रहा है, 3 में हम चेक करते हैं। 3 में चेक करने के लिए हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 0। तो ऐड करने के बाद में हमारे पास में आ रहा है 34। 34 को ब्रेक करो, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो नो, ये 3 में नहीं आ रहा, 5 में आ रहा है बट 3 में नहीं आ रहा, तो 15 में भी नहीं आएगा। तो ये जो नंबर है 15 में भी नहीं आ रहा और 25 में भी नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर है ये 12 और 15 दोनों से डिविजिबल है। तो 12 और 15 के लिए 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर 3 और 4 दोनों में आना चाहिए, और 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर 3 और 5 दोनों में आना चाहिए। तो देखिए ये नंबर 3 में 5 में तो नहीं आ रहा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 4 है। 3 में चेक करने के लिए, क्योंकि 4 और 3 दोनों से चेक करने के लिए, 12 और 15 दोनों से चेक करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी देखनी ही होगी। तो 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 ऐड करिए, आपके पास में आ जाएगा 39। ब्रेक करोगे तो 12। ओके, ये नंबर 3 में तो आ रहा है लेकिन 5 में नहीं आ रहा, तो 15 में भी नहीं आएगा। अब 12 की डिविजिबिलिटी में 3 और 4 दोनों में आना चाहिए, तो 3 में तो ये नंबर आ रहा है। 4 की टेबल में देखते हैं 54। 54 क्या 4 की टेबल में आता है, तो इसको चेक करने के लिए आप 54 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा आता है 4 वन टाइम। अब 5 में से 4 यूज में लिया, 1 कैरी गया, 14 हो गया। 4 की टेबल में 14 नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 से तो है बट 4 से नहीं है, और यहाँ पे 3 से है बट 5 से नहीं है, तो दैट मीन्स ये नंबर 12 और 15 से डिविजिबल नहीं होगा। सो दैट मीन्स दिस वन इज false. Okay students, so today I have explained you divisibility rules, and according to divisibility rules I have explained you question number 9 and question number 10. Now please try solving these two questions by yourself to understand all the divisibility rules. These divisibility rules are very much important to you. Okay, so today I'm ending my lecture here only. Now I'll see you back in my next video where I will be explaining you the last two questions of this exercise, that is question number 11 and 12 of exercise 2.2. Till then, you please try solving question number 9 and 10 by yourself. Okay students, so see you all in my next video. Till then, do take good care of yourself. Thank you students.